أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تا حمد و ثنا رب ذوالجلال اس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او تہندس آلس تامت. پتم دارس یزن مفتی صاحبن دیت بہرحال سورۃ الفاتحہ مختصر درس دیت تمو کی علمی نقاط آئی اس برونٹ کن. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مگو دعا کہ سہ دین اسہ قرآن پاکس پہ عمل کرنک توفیق. مے کر بھی اکہ ساتنس سورہ یس زن نساء تمچ آیت نمبر 3 بھی اکہ ساتنس تلاوت. بہرحال اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم کیا تھا کہ اگر آپ بیویوں کے درمیان یا بیویوں کے مابین عدل اور انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرنا پڑے گا. بہرحال 4 کی اجازت یا 2 بیوی کی اجازت 3 بیوی کی اجازت وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے بیچ میں یا ان کے مابین عدل اور انصاف سے کام لے سکتے ہیں. اگر عدل اور انصاف نہ قائم رہ سکے تب تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرنا پڑے گا. البتہ وما ملکت ایمانکم پھر ایک اور حکم آیا تھا کہ آپ اپنی لونڈیوں سے بھی اپنے نفسانی خواہشات یا ازدواجی تعلقات آپ ان کے ساتھ بھی قائم کر سکتے ہیں. بہرحال لونڈیوں کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا یہ ایک انتظامی معاملہ تھا. یم زن جنگ میں جو قید ہو کر عورتیں آتی تھیں ان کے نان و نفقہ اور ان کو یہ زن مختلف قسم کے معاملات تھیں. بہرحال سرکاری بیت المال پر اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے انتظامی طور پر پھر مجاہدوں کے بیچ میں ان کو تقسیم کیا جاتا تھا. البتہ پہلے تبادلہ اگر ہو تو وہ اس کی صورت بنتی تھی یا فدیہ دے کر اگر کوئی آزاد ہونا چاہے تو اس کی بھی صورت تھی. البتہ اس انتظامی معاملے یعنی بیت المال پر بوجھ کم کرنے کے لیے پھر ان کو مجاہدوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. لیکن ان میں بھی شرائط یہ تھے کہ اگر اہل کتاب یا مسلمان ہو جائے کوئی ان میں تب ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. غیر مسلم عورت کے ساتھ یا کسی غیر مذہب عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہیں قائم ہو سکتے تھے. اور دوسری بات اس میں بہت اہم تھی وہ یہ تھی کہ اسلام نے غلاموں اور لونڈیوں کے اتنے زیادہ حقوق بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن میں بھی آگے آ کر چل کر ہم پڑھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ لونڈیوں والا یا غلاموں کا سسٹم ہی باضابطہ ابالش ہو گئی. وہ بالکل ابالش بلکہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ کتنے حقوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کیے تھے. البتہ ذکر تھوڑی لونڈیوں کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں گے کہ موجودہ دور میں اگر کہیں پر جنگ ہو مسلمانوں کی مان لیجئے حکومت ہوگی اور پھر جنگ ہو اور لونڈیاں ان کے ہاں آ جائیں یا وہ لڑکیوں کو قید کر کے یا عورتوں کو قید کر کے لائیں کیا ان کو بھی لونڈی بنایا جا سکتا ہے؟ تو جواب اس کا ہے بالکل بھی نہیں. فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کسی قوم کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو کہ ہم ان کی عورتوں کو یا ان کے مردوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو آپ ان کو لونڈی نہیں بنا سکتے ہیں. اور اگر تے آج UN چارٹر پڑھو یہ UN چارٹر اس میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ نو کنٹری ول میک دا وومین اور دا فیمیل فوک تم سلیو بنان. تو اس چارٹر پر تمام مسلمان ممالک کے آج دستخط ہیں. اس وجہ سے آج مسلمان ممالک کسی بھی عورت کو لونڈی نہیں بنا سکتے ہیں. دویم کت یہ لونڈی کے ساتھ جو میں نے ازدواجی تعلقات کا کہا ات متعلق اسلامن ییژہ ریلیکزیشن دسمز کہ معمولی باتوں سے بھی آزاد ہو جاتے کیونکہ اصل میں اسلام کا جو مزاج ہے وہ غلامی اور اس لونڈی کے سسٹم کو ابالش کرنا چاہتا تھا مگر چونکہ یہ تمن دہن انتظامی ایک مجبوری تھی اس وجہ سے اس کو پھر اڈاپٹ کیا گیا. ورنہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان چاہے مذاق میں چاہے سیریسلی چاہے ہنسی کھیل میں کہے کہ میں نے آپ کو آزاد کر دیا تو ایک دفعہ کہنے سے بھی وہ لونڈی آزاد ہو جاتی تھی. اسی طرح سے اگر کوئی لونڈی
अपने आका से ये कहती कि मुझे आपके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने की ये मुझे इसकी चाहत या तमन्ना नहीं है, मैं इसके बदले में आपको इतना पैसा या इतना रकम आपको दूंगी। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम की, और अहादीस में भी मिलता है हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी मदद की जाए, यानी इस लोंडी की ये रकम जमा करने में मदद दी जाए। और बेहतरीन मसरफ युजन ज़कात, उनमें से एक मसरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि किसी लोंडी पर ज़कात की रकम या सदकात की रकम खर्च की जाए, ताकि वह अपने आका की किताबत की रकम जो है वो उसको अदा कर सके। दूसरी बात ये भी आप याद रखिए कि अगर कोई लोंडी अपने आका के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करे, यानी कुदरती तौर पर या तो वह अहली किताब होगी या उसने इस्लाम कबूल किया होगा, अगर उसके यहाँ बच्चा हो जाएगा तो बच्चा जनते ही वो आजाद हो जाएगी, यानी बच्चा जनना भी आजादी की उसकी अलामत है। अब उसको इख्तियार होगा, चाहे तो वो इसी मर्द के साथ निकाह करे, या उसको इख्तियार होगा कि वो इस मर्द को छोड़कर किसी दूसरे के साथ अच्छे अंदाज से निकाह करे। अलबत्ता युजन वरासती तौर पर वो बच्चा उस मर्द का तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि तम से अज़दवाजी ताल्लुकात पर। यह तो असल में इन यम जन लोंडियां या यम जन यम स्लेव लड़की आसान, इनको इस्लामी सोसाइटी में जज्ब करने का बेहतरीन तरीका असल में इस्लाम ने अता किया था। अच्छा, अब किसी के जहन में यह सवाल भी पैदा हो सकता है कि अगर इस्लाम का मिजाज ये है कि वो इन लोंडियों या गुलामों के सिस्टम को अबॉलिश करना चाहता था, और किया भी, आहिस्ता आहिस्ता को ये सारे निज़ाम दुनिया पे खत्म ही में, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अहादीस मुबारका में या कुरान के जरिए कोई आयत ऐसी क्यों नाजिल नहीं की कि सिरे से ही इस सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है। इस पर सूदस मुतल्लिक़ बाज़ाबिता आयात कि सूद बिल्कुल हराम है, इस पर बाकी जुआ या शराब उनके मुतल्लिक़ तदरीजन खराबी कुबाहत, फिर इनको सिरे से ही क्या किया गया, हराम किया गया। तो इनको क्यों नहीं हराम किया गया, या इनको मुतल्लक इनके लिए कोई हुक्म क्यों नहीं आया? बहरहाल अच्छे उलमा जवाब दिवन ये कि एक वक्त आने वाला है जिसको हम मलहम उज़्मा कहते हैं, जैसे आखिरी ज़मानस में जंग, अजीम जंग, जब इस्लामी हुकूमत फिर से आएगी, इस्लामी निज़ाम फिर से बर्पा होगा, तो उलमा ने लिखा है कि उस वक्त फिर इस लोंडियों और इस स्लेवरी के सिस्टम को दोबारा रिवाइव करने की जरूरत पड़ेगी। तिकाज यीता कसीर तादादस मज लोंडी वजूदस मज कि उनको फिर जज्ब करने के लिए वही पहला सिस्टम नाफिज करना पड़ेगा। इसीलिए कुरान ने इसके बारे में कोई सरी हुक्म इनकी हुर्मत के बारे में नहीं दिया। ये तो एक बात थी। दयम कथ इंपॉर्टेंट कथ इस आयत से, और बहुत हसास नुक्ता और बहुत हसास मामला है, और इल्मी नुक्ते से मैं आपको चाहता हूं कि सुध कर दूं शेयर, क्योंकि बहुत सारे जवान जहन ऐसे हैं जिनमें ये शकूक पैदा किए जाते हैं आजकल के लिटरेचर के जरिए से। अगर तय आज सोशल स्टडीज पढ़ूं, अगर तय आज मुख्तलिफ किताब पढ़ूं, खुसूसन जवान, आप देखोगे कि इस्लामोफोबिया तिथ पाठन फैलान कि मुख्तलिफ तरीकों से इस्लाम से लोगों को या जवानों को नफरत दिलाई जाती है। बिलखसूस अमुक टारगेट आमद बनान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उस शक या उस शुबे को भी यहाँ पर दूर करना मुनासिब तान। क्यों? क्योंकि उनसे जवानों के दिलों में ऐसे शुबहात पैदा होते हैं, तमन तिश दिलन मज गसन ख्याल पद हो अक्या पोजिश जो शुबा या जो एतराज गैर मुस्लिम करते हैं या कोई एथीस्ट करता है, तुमन तिश बासन के आत्म से कितामत वजन। इसलिए बेहतर है कि हम उन शकों को पहले से ही इन दिलों से निकाल दें। सो शक क्या है? बारह वो ये है कि इस आयत में कहा गया कि हर मुसलमान को इजाजत है कि वो एक बीवी, दो, तीन या ज्यादा से ज्यादा कितनी बीवी के साथ निकाह कर सकता है? 4 बीवी के साथ। मगर गैर मुस्लिम एतराज कारण बिलखसूस ईसाई और यहूदी लाबी, जिनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई अदावत है, ये हम कुरान में पढ़ते आए हैं, तुम बोड़ बार प्रोपागंडा आज ये कारण कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नबी थे कि उन्होंने अपनी उम्मत को तो तालीम दी सिर्फ 4 निकाह करने की ज्यादा से ज्यादा, लेकिन खुद 11 निकाह किए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई निकाह 11 निकाह थे। और ये गज याद था, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है वो उम्मत की माएँ हैं, तुम उम्महातुल मुमिनीन, ये याद रखिएगा। कुरान पाकस में सूरह अहज़ाबस में आमद व निसाउहु उम्महातुल मुमिनीन या व अज़वाजुहु उम्महातुल मुमिनीन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उम्मतियो, इन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो आपके लिए क्या हैं? वो माओं का दर्जा रखती हैं। अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह या हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आता है, वो अक्सर कहा करते थे हजरत आयशा सिद्दीक़ा मेरी बेटी हैं, लेकिन उम्मती होने के बायस
और रूहानी तौर पर वो मेरी क्या लगती हैं, वो माँ लगती है, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजे। इसी तरह हजरत हफ्सा, अगरचे वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, मगर उम्मती होने के लिहाज से हजरत हफ्सा उनके रूहानी बाप थे। गो ये थे याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदारी छ, उनकी तादाद 11 थी। का यह याद आसी, सीरतस पर नजर आसी जवान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी अज़वाज मुतहरात थी। अज़वाज ज़ौजुक जमा, ज़ौज माने बीवी, अज़वाज माने बीवियां, मुतहरात यह द्रामुत के मज ताहिर, ताहिर माने पाक, यानी पाक बीवियां। कितनी बीवियां थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? यार अब ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा यहूद और ईसाइयों और बाकी गैर मजहब वालों ने उठाया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमानों को कुरान इजाजत देता है सिर्फ 4 निकाहों की, मगर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह किए? 11 निकाह किए। और अत पे नौज बिल्ला मिन जालिक प्रोपेगेंडा करना कि नौज बिल्ला मिन जालिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शहवत परस्त इंसान थे, यानी यम हसा इंतहाई शहवत परस्त इंसान, अवै करी हीत्या निकाह, इसीलिए कुरान के हुक्म को पासे पुष्ट डाल दिया। बहरहाल इस हुक्म को या इस प्रोपेगेंडा को समझने के लिए और जवाब कैसे आसन जवान सिंध जहनस में, ताकि वो इन प्रोपेगेंडाओं का शिकार न हो जाए। पहली बात आप याद रखेंगे, सूरह अहज़ाब साथ इंशाअल्लाह रहमान पढ़ो, अगर किसी को वक्त मिले तो वो खुद भी इसका मुताला कर सकता है। सूरह अहज़ाब 21वीं सिपारी में उसकी आयत नंबर 50 और 51 आप पढ़ेंगे। मैं इनकी तिलावत इस वक्त नहीं करूंगा टाइम बचाने के लिए। तथ मुझ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 खास या क्या वन रिलैक्सेशन या 3 खास उनको इनामात किए गए हैं। वो इनामात क्या हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको तफसील बताऊं। याद थोजे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बशर हैं मगर सैयदुल बशर हैं, ये सोन अकीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ही हैं मगर कौन से बशर हैं? सैयदुल बशर, सबसे आला और सबसे सैयद बशर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खसाइल ऐसे दिए थे जो आम इंसानों को नसीब नहीं हुए। मिसाल के तौर पर रिवायतन मुझे आमद हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिदे मोहतरमा, उनके यहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोपहर को आराम करने के लिए जाते थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह की माँ जो थी वो मुहर्रम थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, शायद चाची लगती थी या कुछ ऐसा ही कुछ रिश्ता था। वन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम रिश्ते, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोपहर को कहाँ जाते थे आराम करने के लिए? उन्हीं के घर में। बहरहाल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोफ्त निंद्रि मज आसन तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये जो वालिदा थी ये शीशी लाती थी, शीशी के बोतल आनंद, और चूंकि चमड़े का गद्दा होता था, चमड़े का बिस्तर होता था, और अरब की गर्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें अथर पे रख वथन यानी सीने मुबारक की और यपर अरख। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ये इस पसीने को किसमें जमा करती थी? इस बोतल में जमा करती थी और इसको बंद करके शीशे में रखती थी। अक दो को इत्तिफाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गई याल, यानी सोते सोते ये जमा कर रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुशा, तो इन्होंने कहा बड़ी भी क्या कर रही हो? दोनों यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि क्या शकारनी? दोनों यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं शीशी में ये आपका पसीने मुबारक जमा कर रही थी और बुशस रलावनी मुश्कस और सेंट से, और जब भी कहीं किसी की शादी या किसी की बारात होती है अशपत दुल्हन के लिए हम यही खुशबू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस जैसी खुशबू फिर दुनिया में या कायनात में लबन इतनी महक और इतनी खुशबू थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में। अब बताइए आम इंसान का पसीना कैसा होता है? उसमें बदबू, उसमें सड़ान जैसी होती है, मगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ये पसीना ऐसा था कि उसमें महक से भी और फूलों और अंबर से भी बेहतरीन खुशबू। यह खौसला दिसमस कमो, यह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास अक वसफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता ओस अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया था। अच्छा, इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और खसूसियत थी कि जिसमें अथर ओस त्यूत अथ क्या वन साफ तो पाक। रिवायत में आता है कि आपके जिस्म अथर पर कभी मक्खी नहीं बैठी है, हालांकि आम इंसानों के जिस्म पर मक्खी बैठती है और यह साइंसी तौर पर भी प्रूव हुआ है, और हम भी जानते हैं कि मक्खी आमतौर पर वहां पर बैठती है जहां पर गंदगी होती है। अगर अल्लाह ताला बचे इंसान के जख्म आमुत तो बुझे मछ बहन तो जख्म पे, क्यों? क्योंकि गंदगी खून तो गंदा होता है तो ये उसी गंदगी पर बैठती है। मगर रिवायत में आता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म अथर पर कभी भी मक्खी, ये भी एक मौजज़ा, ये भी एक आम इनाम आकोस कर्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अता कमो हजरत अल्लाह जल्ल शानुहु। इतने बेशुमार खसाए रसूलुल्लाह के हैं कि उनका गिनना बिल्कुल महाल है। बल्कि रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी
किसी के हमरा होते थे, हालांकि आम कद तो उनका दरमियानी कद था रसूल का, मगर ये लुकन सीधे पाकन तो दूर से देखने वाले नजर आता, सबसे ऊंचे कद में कौन नजर आते थे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो फजीलत, ये तो इनाम अल्लाह ताला से तरफ। इसी तरह से एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, यानी तहज्जुद के बाद उनकी आंख लग गई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए उमन हुशार करने। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि हजरत मोहम्मद रसूल खर्राटे ले रहे हैं, यानी मस्त निंद्री मुझसे और ख्रोक्ष नेरन। अब बताइए, जब कोई हम में से सोता है, ये निंद्री पर हुशार कर सोता, हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें तो वुजू करना पड़ेगा, मगर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने जब रसूलुल्लाह को जगाया, बहरहाल रसूलुल्लाह के हुशार रसूल नमाज टाइम बहुत, तो इसी सूरत में, इसी कैफियत में रसूलुल्लाह मुसल्ले पर खड़े हो गए। हजरत बिलाल को अर्ज, या रसूलुल्लाह आप तो खर्राटे ले रहे थे, आप तो सो रहे थे, इसलिए वुजू चाहा जदीद पढ़ने। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नबी की आंखें सोती हैं मगर उनका दिल बेदार होता है, यानी इनको वुजू करने की निंद्री मुझती क्या, ये देखते हैं अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से उनका ताल्लुक कायम रहता। क्या आम इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं। बहरहाल यम क्या खासलत, बहुत सारे खसाइल मैंने इशारतन, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, फिक्र कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मत से एक इम्तियाजी, एक वसफ और इम्तियाजी शान रखते हैं, इसलिए यमन खतर कैसे अहकाम के आसन थोड़ा बहुत क्या इम्तियाजी। तो मैं इशारा कर रहा था सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 और 51 आप पढ़ेंगे। तथ में अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दितमुत कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम उम्मतियों के लिए तो 4 बीवियों तक के लिए हद है, मगर आप जितनी बीवियां चाहें आपको इजाजत है। ये कुरान का हुक्म है। यीशु का गारी दलील वालन के आप आयत नंबर 50 पढ़ेंगे सूरह अहज़ाब में। ये तो एक इनाम है। दूसरा इनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किया गया, ये तो बीवी के मामले में वहां पर कहा गया। दूसरा इनाम यह है कि आम इंसान अगर किसी बीवी से या किसी औरत से निकाह करना चाहेगा उसको महर अदा करना पड़ेगा, मगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी इजाजत दी गई कि अगर कोई औरत आपसे निकाह करना चाहिए या आपने आपको हुब्बा करना चाहे तो वो बगैर महर के भी आप उनको निकाह में ला सकते हैं। अगरचे रसूलुल्लाह ने किसी ज़ौजे मोहतरमा को महर के बगैर अपने निकाह में नहीं लाया, मगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको ये सहूलत दी गई। ब्याक सहूलत आई मंदिर। आम इंसान को यह हुक्म है कि आपको अदल करना पड़ेगा किन के बीच में? बीवियों के बीच में। अगर एक बीवी के साथ रात गुजारेंगे तो दूसरी बीवी के साथ भी आपको एक रात गुजारनी पड़ेगी। अगर एक बीवी के साथ 2 रातें गुजारें तो दूसरी बीवी के साथ भी आपको क्या 2 रातें गुजारनी पड़ेगी। मगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप चाहें तो एक बीवी को छोड़ सकते हैं, एक के साथ आप रात गुजार सकते हैं, इस पर आपको अल्लाह तबारक व तआला कोई मुआखजा नहीं करेगा। बहरहाल या खातून या औरतों के निकाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर यह इजाजत दी गई। किसमें? सूरह अहज़ाब पढ़ जाता है आयत नंबर 50, आयत नंबर 51, इसका आप खुद मुताला करेंगे। तो इस हुक्म से पता चला कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा निकाह किए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये किसी शहवत की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि यह तो कुरानी हुक्म की तामील में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। दयम का आज इसका एक ही हिस्सा कंप्लीट होगा, वक्त मगलो। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह जो किया वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। सभी हमें इसका ऐसा नहीं पता। अब हजरत खदीजतुल कुबरा कौन सी खातून थी? ये ऐसी खातून थी कि इन्होंने इससे पहले 2 निकाह किए थे, यानी कस निकाह करमित, जिन निकाह करमित। अब 2 निकाह करने के बाद उनका तलाक हुई थी और एक रिवायत के मुताबिक उनके एक खावत का इंतकाल हो गया था। बहरहाल जो भी सूरत हो, मगर इन्होंने तो पहले कितने निकाह किए थे? 2 निकाह किए थे। अब 2 निकाह करने के बाद इनका निकाह हो रहा है किनके साथ? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अच्छा, उम्र क्या थी? हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल। छा का जवाना आज ये निकाह कबूल करेगा आज के दौर में? आजमाने का लड़का जो 25 साल का होगा वो किसी 40 साल की बूढ़ी औरत के साथ, जिसको 2 मरतबा तलाक हो चुकी हो या जिसने 2 मरतबा शादी की हो, उनसे बच्चे भी हुए हों, क्या कोई जवान आज ऐसी औरत के साथ निकाह करने के लिए तैयार है? गो इसलिए इससे पता चलता है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शहवत परस्त इंसान नहीं थे। दूसरी बात जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बस इसी एक औरत के साथ निभा किया है। यानी 25 साल की उम्र में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, निकाह किया किनके साथ? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ।
और 50 साल की उम्र तक रसूल ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। यानी 50 वुहर ये रसूल में उम्र गई, यानी जब बुढ़ापे को पहुंच गए तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 25 साल सिर्फ एक बीवी के साथ निभा किया है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर कोई शहवत परस्त इंसान होता तो क्या वो एक बीवी के साथ अपनी जवानी के ये यमजन लम्हात या जवानी की उम्र क्या वो एक ही बीवी पर इक्तिफा कर सकते थे? नहीं। तो इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा बीवियां करना ये शहवत की बुनियाद पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं था, बल्कि इसमें दीनी मसलहतें, इसमें उम्मत की बका और इसमें उम्मत की कोई खैर ख्वाही होगी। ये गए जवाब। तीसरा जवाब आप याद रखेंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर सहाबा मर पिटने के लिए तैयार होते थे। हत्ता कि सीरत की किताबें भरी हुई हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अदना सा इशारा किया और सहाबा उस एक इशारे पर मरने के लिए और मिटने के लिए तैयार होते थे। बल्कि आपने देखा होगा यम सातन सुलह हुदैबिया को तम सातन ये जो कुफार का या मुशरिकीन मक्का का जो सफीर आया था हजरत सहल, तो उन्होंने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर थूकते भी थे तो वापस जाकर उस सहल ने अपने मुशरिकीन मक्का सरदारों से कहा था, अरे मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब ही शान देखी कि वो जब थूकते हैं तो उनके साथी जो हैं वो उन थूकों को अपने हाथों पर मलते हैं और अपने चेहरों पर मलते हैं। ये अकीदत और इतनी मोहब्बत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, किनको? इन जानिसारों को। और रिवायत में आता है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते थे तो उस वुजू के पानी को हजरत सहाबा कभी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। यानी राटन अथन में उसको मलते थे अपने किन के साथ? अपने जिस्मों के साथ। इतनी अकीदत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सहाबा के दिल में। और मोए मुकद्दस जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये बाल तो बनवाते थे या अगर बाल काटते थे तो उन बालों को जमीन पर गिरने ही नहीं देते थे सहाबा, बल्कि वो उन बालों को अकीदत के तौर पर बांटते थे और तकसीम करते थे और अपने पास अकीदतन रखते थे और ऐसा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उनको हासिल हो गई है। ये अकीदत जनाब सहाबा के बार कुमन से। अब ऐसे सहाबा इतने जानिसार, क्या ये मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अगर उनको बीवी की हाजत होती, अगर उन्हें किसी हसीन लड़की की हाजत होती तो वो किसी सहाबी को हुक्म करते और वो उस हुक्म की तामील ना करते? है क्या ये बने? ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इन हालात में भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जवानी के बेशतर औकात बल्कि 50 साल की उम्र तक भी किसी सहाबी को ये हुक्म नहीं करते हैं कि मैं आपकी फलानी बेटी से, फलानी बहन से, फलानी किसी रिश्तेदार से निकाह करना चाहता हूं। वो इससे पता चलता कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुतअद्दिद निकाह जो है ये शहवत की बुनियाद पर नहीं किए। आखिरी बात आज के दर्स की, फिर हम कल पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह ने ये निकाह कैसे किए। आखिरी का चीज आपने देखा होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत को इब्तिदाई मरहले में फैला रहे थे, कुफार मुशरिकीन मक्का जो थे उनके सरदार जो थे तो मतलब ये दावत ज्यादा देर नहीं चलेगी, केहन दोहन पाकियत ये बेही पान है। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता इस दावत ने जोर पकड़ा तो जब मुशरिकीन मक्का परेशान हो गए कि ओहो अब तो ये ताकत बन रहे हैं, तो उन्होंने एक वफद भेजा था किसके पास? अबू तालिब के पास। अबू तालिब को क्या कहा था कि इस भतीजे को समझाओ, ये लोगों को बददीन कर रहा है, इसको कहो अगर आपको माल दौलत की हवस है, माल दौलत की आपको हवस है तो जितना माल आप चाहते हैं हम आपके कदमों में निछावर कर देंगे, मगर इस दावत से बाज आ जाओ। दईम पेशकश थवस ही थे कि अगर आपको बाक़ी मुअज़्ज़मा की सरदारी की हवस है, अगर आप सरदार बनना चाहते हैं, हम बिला मुशाफा, हम किसी भी तफर्रुका के बगैर हम आपको अपना सरदार तस्लीम करेंगे। यानी अगर सरदारी मगर इस दावत से बाज आ जाओ, लुक मकर नऊज़ बिल्लाह बददीन के। तीसरी पेशकश ये की अगर इनको हसीन और जमील किसी औरत की हाजत है, अगर ये चाहते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा की किसी हसीन औरत से ये निकाह करना चाहते हैं, जिस बीवी, हम तमाम लड़कियों को आपके पास बिल्कुल हाजिर करते हैं, जिस लड़की की तरफ ये इशारा करते हैं, जिस औरत की तरफ ये इशारा करेंगे हम आपका उनके साथ निकाह कराएंगे। बहरहाल अगर ये ऐसे हवस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अगर ये नफ्स परस्त होते, शहवत परस्त होते, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। मगर इस बात पर भी उन्होंने क्या कहा कि ए चाचा अगर ये मेरे एक हाथ में महताब रखें और एक हाथ में ये मेरे हाथ में सूरज आफ्ताब रखें तो फिर भी मैं इस दावत से बाज आने वाला नहीं। तो बताइए
इस वाक़े की आप क्या तवजीह करेंगे? अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहवत परस्त नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं, ये तो उनके लिए बेहतरीन और सुनहरी मौका था अपनी शहवत को पूरा करने के लिए, मगर उस वक्त भी आपने इन तमाम जो ऑफर्स हैं इनको ठुकराया और कहा कि मैं इस दावत से बाज आने वाला। तो इन वाक़ात से पता चलता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ये प्रोपेगेंडा और ये बहतान बांधा जा रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और वैसे भी मैंने पहले आपको कहा कि इनसे पहले भी जो भी नबी गुजरे हैं उन्होंने मुतअद्दिद निकाह किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने कहा उनकी 4 निकाह हुए थे, हजरत इब्राहिम के 3 निकाह थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कहा जाता है कि 9 निकाह थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल में लिखा है कि उनके 700 बीवियां थी। गर्ज प्रेथ नबी साहब मुतअद्दिद बीवियां, मगर चूंकि इनकी दिल की ये बुग़्ज़ और इनको बड़ास निकाली थी, इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बहतान बांधा कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शहवत की वजह से उन्होंने मुतअद्दिद निकाह किए। बहरहाल कल हम पढ़ेंगे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र को पहुंचने के बाद ये निकाह क्यों किए, ठीक है? इससे आपके बहुत सारे शकूक वो रफा हो जाएंगे। और बहुत बड़ा फितना एक जो है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र उस वक्त क्या थी जब उनका निकाह हुआ था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, उस पर भी बहुत ज्यादा बहतान बांधा जाता है। इंशाअल्लाह रहमान कल के दरस में हम उन सवालात का भी जवाब देंगे। अल्लाह ताला से मगो दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला करीन सानिन दिलन में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत और तिहज़ मोहब्बत पद वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।